Once again, a very good morning, students. We are we have discussed about that what is environment. Now I am going to tell that what are the different components of environment, means how this environment is formed. So there are three components: natural, man-made, human. जो हमारा environment है, ये तीन चीज़ों से आप देखो ना, environment का मतलब एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू। तो आपके चारों तरफ क्या है? नेचुरल एलिमेंट्स हैं, मैन मेड एलिमेंट्स हैं और आप हैं। क्लियर? आप हैं, आपसे बनी आपकी सोसाइटी है जिससे आप सराउंडेड हो। ओके, सो नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स यू ऑलरेडी नो लैंड, एयर, वाटर and living beings, living things. This is your natural environment. लिविंग थिंग्स को हम बायोस्फीयर कहते हैं। लैंड मीन्स लिथोस्फीयर, एयर मीन्स एटमोस्फीयर एंड वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर। बट व्हाट अबाउट द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? दिस इज योर बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स। बट देर इज थर्ड एलिमेंट, that is the component of the environment. This is your human environment. What is human environment? You as an individual, your family, your community, your society, your religion, educational, economic and political institutions, this all that is related to you, this all are the components of the environment. Okay, now it is clearly written here कि now you understand that people, place, things and nature that surround any living organism is called environment. So environment is a combination of natural and human made phenomena, while the natural environment refers to both नेचुरल इन्वायरमेंट्स में बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों चीज़ें आती हैं। व्हाट इज़ बायोटिक? बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म? प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ योर लैंड। ओके, so we will discuss about the natural environment. Land, water, air, plants, animals, these are the natural environment. In natural environment, what is this land? Land है ना, जो कि हमें नेचर से मिला है. So what we say? Lithosphere. Water है हमारे चारों तरफ. We say hydrosphere. Air means atmosphere. Biosphere is the interacting zone of all these three, in which water, air, land is available. This is your biosphere zone. So this 4R comes under natural environments. Now let's talk about lithosphere. Lithosphere is the solid crust और लिथोस्फीयर क्या है? लैंड है. लैंड को आप कैसे कहोगे, क्या बताओगे कि लैंड इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ. लैंड कैसे बना है? इट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स दैट कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. जिस लैंड पे हम अभी बैठे हुए हैं, ये जो लैंड है ये रॉक से बनी है, मिनरल से बनी है. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म. अब इस लैंड फॉर्म पे वेरियस लैंड फॉर्म्स हैं लिथोस्फीयर में. फॉर द एग्जाम्पल माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज. लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट. अब जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं ये किस पे बने हुए हैं? या तो कॉन्टिनेंट्स में है या फिर ओशन फ्लोर्स में है. लिथोस्फीयर इज द डोमेन
दैट प्रोवाइड अस, अब देखो लैंड एरिया पर ही लिथोस्फीयर में फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स, ह्यूमन सेटलमेंट सब कुछ है. दिस इज द इम्पोर्टेंस. अगर लैंड नहीं होता, what will happen? You have not any land for agriculture. You are unable to human settlements to live in human settlements. There will be no grasslands. So, lithosphere is also a source of mineral wealth. Clear? Okay, let's discuss about hydrosphere. The domain of water is hydrosphere. It comprises various sources of water and water bodies like rivers, lakes, sea, oceans. And you know that water is essential for all living organisms. So this is hydrosphere. What is atmosphere? Atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. हमारे चारों तरफ अर्थ को एक लेयर ने सराउंड कर रखा है. That layer is known as atmosphere. And how this air holds, so the gravitational force of the earth hold the atmosphere around it. This atmosphere protects us from the harmful rays. Atmosphere का use क्या है? क्योंकि there are various layer air है ना, various gases in the atmosphere. So ये gases हमें sun की स्कॉर्चिंग हीट से जो गर्मी आती है उससे और उसकी हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है. यू ऑलरेडी नो दैट देयर इज अ ओजोन गैस. ओजोन गैस क्या करती है? जब सन की रेज आती है तो वो ओजोन गैस क्या करती है? वो प्रोटेक्ट करती है. यू ऑलरेडी नो that this ozone gas is found in the atmosphere का जो सेकेंड लेयर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पे ये ओजोन गैस मिलती है. क्लियर? सो आवर एटमोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. सो एटमोस्फेयर में सिर्फ गैसेस ही नहीं होता, डस्ट भी होते हैं, वाटर वेपर भी होता है. एंड जिसकी वजह से हमारा वेदर और क्लाइमेट क्या होता है? वो बैलेंस्ड रहता है. एंड इफ देयर इज अ चेंज इन द एटमोस्फेयर देन देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट. सो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर. अब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो हम सब जिस जोन में रहते हैं दैट जोन इज़ नोन एज बायोस्फीयर. हम एटमॉस्फेयर में नहीं रहते. क्यों? क्योंकि अगर केवल वहाँ पे एयर ही होंगी, गैसेस ही होंगे, तो हमें वाटर कहाँ से मिलेगा? हम हाइड्रोस्फीयर में नहीं रह सकते केवल, क्योंकि अगर वहाँ पे केवल वाटर ही है तो हमें एयर कहाँ से मिलेगा? लेकिन बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहाँ पे लैंड भी है, वाटर एंड एयर, दिस ऑल थ्री interact with each other to support life. So we live in the biosphere zone. Now, next topic is what is ecosystem. Ecosystem की बात की जाए तो आप देखोगे कि रवि जो है एक इमेजनरी बॉय है, तो वो अपने एनसीसी क्लासेस ले रहा है और वो बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि केरला का, उसका एक फ्रेंड केरल में है और वो केरल के बारे में बता रहा है कि केरल में कितनी रेनफॉल होती है. वही जो दूसरा फ्रेंड है जो जैसलमेर से है, वो बताती है कि हमारे जैसलमेर तो नो रेन्स, वहाँ पे कोई बारिश ही नहीं होती. तो फिर वहाँ पे बारिश नहीं होती है और केरला में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है. अब इकोसिस्टम की, क्योंकि हमें समझना है कि व्हाट इज इकोसिस्टम, देन वी हैव टू सी दैट कि जो डिजर्ट एरिया है, डिजर्ट एरिया में क्या होगा? वहाँ के इकोसिस्टम में क्या होगा? कैमल है.
ठीक है, कैमल है, और क्या होगा, सैंड है, नो वाटर, है ना, सैंड है, इंसेक्ट्स है, लिजार्ड्स हैं, स्नैक्स हैं। डिजर्ट एरिया के इकोसिस्टम में क्या होगा, दिस ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, environments are found there. But what about a boy who lives in Kerala? केरला में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है, वहाँ पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द डेजर्ट एरियाज. सो वी सी दैट कि डिफरेंट एरियाज़ का इकोसिस्टम अलग अलग होता है, चाहे वो रेन फॉरेस्ट हो या फिर आप रेन फॉरेस्ट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यू विल सी देयर प्लांट्स एंड वेजिटेशंस, और lot of plants and vegetations that is different from the desert area vegetations, grasslands, mountains. तो इन सब जगहों का इकोसिस्टम जो है वो अलग अलग होगा. ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि एक फिश है, तो फिश का इकोसिस्टम कैसा होगा, फिश को रहने के लिए चाहिए पॉन्ड, पॉन्ड में उसको कुछ खाने के लिए मिल जाए. ठीक है, लेकिन अगर मैं फिश को डेजर्ट एरिया में छोड़ दूँ तो क्या होगा, मर जाएगी फिश. तो फिश का इकोसिस्टम क्या हुआ कि उसको पॉन्ड चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर में उसको गैसेस मिलती रहती हैं, ऑक्सीजन, जिससे वो ब्रीदिंग करती रहती है, और उसको कुछ खाने के लिए चाहिए. बस यही है उसका इकोसिस्टम. लेकिन अगर मैं कैमल की बात करूँ तो कैमल को मैं पॉन्ड में नहीं रख सकती. कैमल को रहने के लिए डिज़र्ट एरिया ही होगा, कैक्टस ही उसके आसपास ग्रो होंगे, बबूल की ही खेती होगी उसके आसपास, एकासिया की ही खेती होगी. ठीक है, खेती नहीं होगी, वो सब अपने आप निकलते हैं कैक्टस डिज़र्ट एरिया में. ठीक है, अगर मैं माउंटेन्स एरिया की बात करूँ तो माउंटेन एरिया पे जो वेजिटेशन होगा, वहाँ पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे, दैट विल बी डिफरेंट. सपोज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द पोलर बियर, पोलर बियर को अगर हम डेजर्ट एरिया में छोड़ दें तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा, नहीं. पोलर बियर के लिए चाहिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा, जो बहुत ज़्यादा स्नो एरिया चाहिए, बर्फ़ वाली जगह चाहिए. क्लियर. तो पोलर बियर का इकोसिस्टम क्या हुआ, फ्रिजन एरिया, फ्रिज लैंड, जैसे अंटार्कटिका, वो वहीं पे सरवाइव कर सकता है. प्लेन एरिया में सरवाइव करने वाले जो इकोसिस्टम होंगे, जो लैंड होगा, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा अलग होंगे. सो व्हाट इज इकोसिस्टम, ecosystem means it is a system formed by the interaction of all living organism, interaction of all living organism. तो जो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका इंटरेक्शन फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स के साथ होगा. देखो बेटा, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरा फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर है. इसका मतलब क्या हुआ, एंड थर्ड इज ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ये 3 टर्म्स अगर आपको क्लियर हो गए तो आप इकोसिस्टम को डिफाइन कर सकते हो. तो इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन विच इफ़ यू लिव इन एनी लैंड, आप किसी भी लैंड पे रहते हो, यू आर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप वहाँ फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे. मतलब फिज़िकल और केमिकल फैक्टर क्या होता है, आप वहाँ के फूड को खाएंगे, आप वहाँ के एयर और वाटर को आप इंटरेक्ट करेंगे, वो आप लेंगे. ठीक है, और फिर क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगी. फिर आपने जो भी फूड खाया है, फूड में पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी, और वो आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दूसरे प्लांट्स में, दूसरे एनिमल्स में. तो इकोसिस्टम मीन्स कि
आपके आसपास आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आपके आसपास जिस तरह का एक सिस्टम क्रिएट होता है, दिस इज योर इकोसिस्टम. नेक्स्ट इज what is human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Human जो है वो environment के साथ क्या करता है, interact करता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको modify यानी कि change भी कर देता है. ठीक है. For the example, early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them. देखो होता क्या है कि जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते थे, उनके आसपास जो सराउंडिंग्स थी उसी को खाते पीते रहते थे, इकट्ठा करते रहते थे, है ना, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे. ठीक है. अब ह्यूमन के सामने जो भी इन्वायरमेंट है उसमें वो चेंज करता है. जैसे मान लो कि हमें पानी चाहिए, तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा, ग्राउंड वाटर में भी पानी है, ग्राउंड के नीचे पानी है. तो हमने इन्वायरमेंट से पानी लिया तालाब बना करके, ठीक है, ट्यूबवेल लगा करके हमने पानी लिया. यानी कि हम लोगों ने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट को चेंज किया अपनी ज़रूरत के हिसाब से. ठीक है. आज जो कॉन्सेप्ट है, किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन इन्वायरमेंट का. ह्यूमन अपने नीड के अकॉर्डिंग क्रॉप्स ग्रो करती है, एनिमल्स डोमेस्टिकेट करती है, सेटल्ड लाइफ वो जीती है. जब फर्स्ट टाइम व्हील इन्वेंट हुआ था, धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन चेंज होते गए, मतलब एडवांस फॉर्म में आते गए. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ह्यूमन अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें थी उसमें मॉडिफाई करता गया, चेंज करता गया. ठीक है. उसने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. इंफॉर्मेशन, आज देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो टाइम है वो चला आ रहा है. आप देखो रॉकेट्स और सैटेलाइट्स वगैरह डेवलप हो चुकी हैं. क्यों, क्योंकि हमारी वो नीड है, हमने अपने इन्वायरमेंट में अपनी नीड के हिसाब से चीज़ों को, जो चीज़ें हैं उनमें हमने चेंज किया. फिर एक क्वेश्चन है, अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये बैलेंस बना रहे नेचुरल और ह्यूमन के बीच में. पता चले कि हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो एक दिन क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है. तो हमारा जो इन्वायरमेंट का जो, क्योंकि नेचर जो है वो हमारे इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है, तो इन्वायरमेंट के साथ वो बैलेंस नहीं बन पाएगा. फॉर द एग्ज़ाम्पल, अगर हमें लैंड सेटलमेंट चाहिए तो हमें लैंड के लिए फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा. फॉरेस्ट कट होने से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल, अगर हम लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट कट करने लगे तो फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें, जो भी एडवांटेजेस है वो हमें नहीं मिलेंगी, वो हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा. प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, रेनफॉल नहीं होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन अफेक्ट होगा. ठीक है. फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ इससे अफेक्ट होगी. ठीक है. हमें लकड़ी नहीं मिल पाएगा, मेडिसिन्स नहीं मिल पाएंगे. क्यों, क्योंकि हमें लैंड चाहिए रहने के लिए, तो फॉरेस्ट को तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है. ठीक है. तो हमें ये इन्वायरमेंट का बैलेंस ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ बना के चलना होगा. क्लियर. सो दिस इज़ योर ह्यूमन इन्वायरमेंट. ठीक है. जो इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट. So this is all about the chapter. Thank you.